So the neuen Gastarbeiter, the new guest workers, immer mehr Menschen in Südeuropa lernen Deutsch. Immer mehr होगा, more and more people are learning German in South Europe, in Südeuropa. Der Grund, the reason, what is the reason why they are learning? Die Krise in diesen Ländern ein Problem. The Krise is crisis. There is a crisis in these countries. इतने नहीं प्रोग्रेस कर रही है, कुछ ना कुछ क्राइसिस है इनमें. There is Krise for allem für junge Menschen, especially for young people. Mehr als 20% sind arbeitslos. More than 20% people are jobless. जर्मनी में इतना नहीं है बेरोजगारी, जर्मनी में इतनी ही नहीं. कोरोना से पहले जर्मनी में 2.5% बेरोजगारी थी. सबसे कम बेरोजगारी जहां होती है उन कंट्रीज में है जर्मनी. सो बट इसके जो दूसरे पड़ोसी हैं साउथ यूरोप के कंट्री, वहां 20% तक है. सो दे वुड लाइक टू कम एंड वर्क हियर. So why they are learning German? Es gibt Menschen, die arbeitslos sind. 20%. Aber sie sind mobil und die Flüge sind billig. But these people are ready to move. Mobil. Und die Flüge, flights are cheap. So they don't bother. आ जाते हैं वो. Sie sehen ihre Jobchancen oft in Deutschland. They see their job chances often in Germany. Sie verlassen Sevilla, Athens, Palermo und gehen nach Berlin, München oder Hannover. ये अपने सिटीज, ये जो भी सिटीज हैं अलग अलग कंट्रीज के कुछ नाम दिए उन्होंने. आथेन मतलब एथेंस, पालेर्मो, जेविला. They leave their cities and then they come to German cities like Berlin, Munich and Hanover. 2012 का मतलब है im Jahr 2012, in the year 2012 sind rund 30.000 Spanier nach Deutschland gekommen. Around 30.000 Spanish people came to Germany gekommen. Und genauso viele Griechen, Italiener und Ungarn. And also 30,000 people came from Greece, from Italy, from Hungary. Ungarn is Hungary. Das Nachricht Magazin, जर्मनी की न्यूज मैगजीन, पॉपुलर मैगजीन है. Der Spiegel hat 2013 darüber berichtet und sie die neuen Gastarbeiter genannt. This magazine made a report that time and named them as the new guest workers. उस मैगजीन ने रिपोर्ट बनाई कि पहले आते थे वैसे देखो गेस्ट वर्कर अभी भी वैसे ही आ रहे हैं यहाँ. तो एक ही साल में 2012 में केवल 4 कंट्री से ही 1,20,000 लोग आ गए एवरेज, केवल 4 से, बाकी से बहुत आए ऐसे. सो दीज आर द न्यू गेस्ट वर्कर्स, यंग पीपल इन सर्च ऑफ जॉब. नाउ देन द अदर, वो सेम टेक्स्ट ही है, उसके आगे दीजन स्पीगल. आपसे पूछूंगा कुछ मैं इसमें. दीजन स्पीगल हार्ट Carolina Lopez im Regal. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बिना सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस हो नहीं सकता. ऐसे मत बोल देना सब्जेक्ट है ही. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? Carolina Lopez. Yes, करेक्ट. Carolina Lopez ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ये नहीं है क्योंकि दीजन आ गया. दिस लेडी लोपेस हार्ट दीजन स्पीगल इम रिगाल. रिगाल मतलब अपनी सेल्फ में रख रखी है उसने ये पर्टिकुलर मैगजीन. क्यों? जी वार 2013 auf dem Titel Carolina 28 ist aus Spanien, aus Sevilla. So she was on the title, मतलब मैगजीन के टाइटल पे छपी थी इसकी फोटो. तो इसके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन बन गई दुनिया की क्योंकि इनकी छपी है फोटो. सो she has in the regal. ये नेचुरल होता है अपना, कोई अखबार में छप जाए तो हम उसको संभाल के रखते हैं. दिस इज नेचुरल. सो she
has this magazine in herself. Sie war 2013 auf dem Titel. She was on the title. She is 28 years old from Spain. Aus Sevilla. Sevilla is the city. In Spain, Sevilla is the city. Ihr Großvater war in den 1960er Jahren in Deutschland und hat in Korbach in einer Fabrik gearbeitet. Her Großvater, her grandfather was also in 1960s in Deutschland. He was also there in Germany und hat in Korbach, Hessen में कोरबाख करके कोई प्लेस है, in einer Fabrik is factory. He worked there in a factory. Später ist er zurück nach Spanien gegangen. Later on he has gone back to Spain. Carolina hat Marketing studiert. Present perfect का सेंटेंस है. देखो इसमें भी अलग अलग तरह के सेंटेंस आ रहे हैं. She has studied marketing. Sie hat Marketing studiert und war im Studium schon ein paar Monate in Berlin. ये प्रेटेरिटम का सेंटेंस आ गया. She was im Studium का मतलब है कॉलेज टाइम में, स्टडी टाइम में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी वो, तब she was also ein paar Monate for few months in Berlin. Sie findet, ये प्रेजेंट का आ गया. Sie findet die Stadt jünger und internationaler als spanische Städte und sehr modern. So ये कंपैरेटिव आ गया जो अपन ने सीखा था. युंग में देखो umlaut भी लगता है, वो भी आ गया इसमें. She findet the start. She finds this city younger and more international than Spanish cities and they are modern. इसको बहुत मॉडर्न लगता है. स्पेन से जब कंपैरिजन करती है वो, कंपैरेटिव डिग्री आई है, इसका मतलब कंपैरिजन तो हो रहा है. इंटरनेशनल का इंटरनेशनलर ईआर लगाते हैं अपन और साथ में आल्स लगा देते हैं, इसका मतलब किसी और से इसका कंपैरिजन है. जैसे बेसर आल्स डू, तुमसे बेटर, ऐसे इंटरनेशनलर आल्स स्पेनिश स्टेट है, मोर इंटरनेशनल लगते हैं इसको ये जर्मन सिटीज इन कंपैरिजन टू स्पेनिश सिटीज. und sehr modern, बहुत मॉडर्न लगते हैं इसको. The winter in Berlin sind viel kälter, again comparative, und länger als in Spanien. जर्मनी की विंटर बर्लिन में वो ज्यादा कोल्ड है. काल्ट का केल्टर उमलाउट क्यों लगा? क्योंकि ये मस्ट उमलाउट में आपने देखा होगा, काल्ट वार्म वो वाला रूल लग रहा है इसमें. लांग भी था उसमें, तो इसीलिए उमलाउट है यहाँ. लेंगर als in Spanien und ihr Deutsch war am Anfang again past. Her German was in the beginning auch noch nicht so gut. It was not so good wie heute as. देखो जो भी का हमने कंपैरेटिव का पॉजिटिव वाला कंपैरिजन जब करते हैं तो जो और वी के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ जाती है. कि जैसे कि आज aber in Sevilla hatte sie nach dem Studium keine Chance auf einen Job, but in Sevilla in her city there were she had no chances. haben का पास्ट प्रेटेरिटum यही है. sie hatte keine Chance, अपने सिटी में तो इसको कोई उम्मीद ही नहीं थी जॉब की. in der Krisenzeit in this crisis time gab es, geben का gab प्रेटेरिटum, gab es keine Arbeitsplätze, there were no job chances, vacancies für Marketing Experten, especially Marketing Experts की तो वैकेंसी नहीं थी. in Berlin hat sie jetzt eine gute Arbeit. ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है कि परफेक्ट का है? in Berlin hat sie jetzt eine gute Arbeit und nette Kolleginnen. प्रेजेंट का है. यस, haben है, इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब भी नहीं है, सो सिंपल प्रेजेंट है ये. in Berlin, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? in Berlin hat sie jetzt eine gute Arbeit und nette Kolleginnen und Kollegen. सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? जी, यस, परफेक्ट. Carolina Lopez. यस. सो देखो प्लेस को पहले ले लिया, इन्होंने तो लिहाज ही नहीं किया उस बात का. टेको मोला का अपना रूल जो था, टेका मोलो, लिहाज ही नहीं किया. टाइम लेना चाहिए, कारण लेना चाहिए, मोड लेना चाहिए, प्लेस तो लास्ट में लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले ले लिया. इसका मतलब क्या है? लिहाज इसने सब किया है, लेकिन इसने जानबूझ के पहले लिया है. कभी कभी किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना हो तो हम उसको पहले ला सकते हैं. इन जयपुर वो नहीं, जयपुर में रहता हूं मैं,
तो जयपुर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं। जनरली आदमी खुद को, पर्सन को इंपॉर्टेंस देता है, इस वो ने इन जयपुर। मैं बोल रहा हूं जयपुर में रहता हूं मैं, यही है धरती का बीज, जयपुर में रहता हूं, सो जयपुर में रहता हूं, इस बात को मैंने इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, तो कभी कभी जिस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देना हो, जॉब के लिए जा रहा हूं मैं जयपुर, किसी ने बोला किस लिए जा रहे हो, जॉब के लिए, तो जॉब को इंपॉर्टेंस, रीजन को इंपॉर्टेंस दे दिया मैंने। कभी कभी ऐसा होता है, खास तौर पे आपका इंटेंशन, आप सीधा दिखाना चाहते हो उस चीज को पहले। रवि के साथ जा रहा हूं बीकानेर, तो रवि के साथ ये चीज इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। हाँ, तो मैं समझ गया, अब इसका किराया भी रवि देगा, हर बार यही करता है। तो कोई इंटेंशन होता है, तो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं। तो इन्होंने इन बर्लिन, क्योंकि अपने सिटी में क्यों नहीं रही, बर्लिन ही इसके लिए धरती का बीच हो गया। इसको पता चला कि बर्लिन में फायदा है, वो कैपिटल भी है जर्मनी की, वहीं चलो। बाकी लोग तो और कहीं भी जा रहे थे, इसने कहा नहीं बर्लिन में ठीक है मेरे लिए। सो इन बर्लिन hat sie jetzt eine gute Arbeit und nette Kolleginnen und Kollegen. Sie has good colleagues, nice people and job. Here leben auch viele Spanier. और यहाँ पे बहुत सारे स्पेनिश लोग भी रहते हैं, उनके साथ भी बात करनी हो तो अपनी लैंग्वेज में कर सकती है ना। Carolina will jetzt in Deutschland bleiben. Now she want to stay in Germany. Will, देखो मोडाल का आ गया, जो आज डिस्कस कर रहे हैं वही आ रही है इसमें, या जो अभी तक अपन ने किया है। will आ गया तो मेन वर्ब लास्ट में। She wants to stay in Germany only. ये अपने दादाजी की तरह गलती नहीं करना चाहती, दादाजी तो वापस चले गए थे। ये कह रही है, यहाँ सेंटेंस है, कारोलिना विल jetzt in Deutschland bleiben. यही रहूंगी, यही रहूंगी। जाओगी वापस? ना ना ना, वापस नहीं जाना मुझे, यही रहूंगी। ठीक है, यहाँ रह जाओ कारोलिना। एलिस ब्राडोवा काउंट हाउस ब्रुनो, ब्रुन, इसी को ब्रुन कहते हैं। ये क्यों लिखा है साथ में, क्या पता आप इसको ना समझो तो उसको समझ जाना। ब्रुन, जैसे कोई बोले डॉइचलैंड, तो डॉइचलैंड मतलब जर्मनी। सो कभी कभी ऐसा लिखते हैं जब ऐसे लगे कि यार लोग इसको ज्यादा जानते होंगे, इस नाम से ज्यादा जानते होंगे, तो सब जगह लिटरेचर में, बुक्स में ये लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाना ये यही है, इसलिए लिख देते हैं ऐसे। सो सी कॉम्ट हाउस ब्रुनो, ब्रुन, das ist in Tschechien, this is in Czech Republic, Tschechien, इसको चेशिशर रिपब्लिक भी बोलते हैं और चेशियन भी बोलते हैं। जी hat als Kind einen Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule besucht. ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है? किस टाइप का सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, करेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है ना। हार्ट बेजुक्ट, हार्ट भी है और बेजुक्ट भी है। देखो, Sie hat als Kind einen Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule besucht. मतलब हार्ट आया और उसके साथ बेजुक्ट आ गया। She has visited. Yes. Und And this when she was kid. yes, when she was kid. All से पता चल गया। Very good. As a child. As a child. यहाँ पे as है इसका मतलब, वो तो कनेक्टर होता है जब केवल पास्ट की एक बार आती है ना, तब तो कनेक्टर के रूप में। आल्स का मतलब एज भी होता है। एज ए चाइल्ड सी लर्न जर्मन इन गवर्नमेंट स्कूल, स्टार्टलिशन स्प्राखशूले, सम स्टेट लैंग्वेज स्कूल। und später am Gymnasium, जिम्नाजियम को जिम मत समझ जाना, ये काइंड ऑफ स्कूल है, 12 तक का स्कूल होता है। später am Gymnasium weiter Deutsch gelernt, अगेन gelernt से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। फिर इसने जिम्नाजियम में जर्मन पढ़ी। while देखो रीजन देने के लिए, बिकॉज के लिए, कनेक्टर है ये। अब जब भी कनेक्टर आएगा तो वर्ब तो लास्ट में आएगी, ये सीखा अपन ने। while ihr Deutsch Spaß gemacht hat, बिकॉज जर्मन में इसको मजा आया इसलिए इसने जर्मन पढ़ी। और भी ट्राई की होंगी, राइट, जर्मन में मजा आया। मैंने भी और ट्राई करी थी, चाइनीज ट्राई करी थी मैंने, लेकिन मेरे को जर्मन में मजा आया, राइट। सो कई लोग ट्राई कर करके देखते हैं। Sie hat sich sehr für die deutsche Literatur interessiert und viel gelesen। जर्मन लिटरेचर में
प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, देखो हार्ट आ रहा है, जी हार्ट जिश für deutsche Literatur interessiert यस, एंड gelesen से भी पता चल रहा है, इंटरेस्टियट भी प्रेजेंट परफेक्ट है और ये gelesen भी है। जर्मन में उसका इंटरेस्ट था, हार्ट इंटरेस्टियट und gelesen। योस्ट्राइस वार नेस्ट वाइट, ये पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट। ऑस्ट्रिया उससे कोई दूर नहीं था, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया तो बॉर्डर ही है। इट वाज नॉट फार अवे, aber erst 1990 konnte sie öfter als früher dorthin reisen, but from 1990 onwards she could go there। तब उससे जाना शुरू किया उसने, राइजन। Heute arbeitet sie in Prague für Henkel। Henkel is a big company, जर्मन कंपनी। Henkel का केमिकल और कई सारी चीजें होती हैं, काफी बड़ी कंपनी है, इंडिया में भी खूब काम करती है। Henkel Heute arbeitet sie in Prague, प्राग में काम करती है हेंकल के लिए, für Henkel। Das ist ein deutscher Chemiekonzern। कॉन्सर्न का मतलब है कंपनी। सो कंपनी के लिए भी कई सारे वर्ड दिखेंगे आपको। दी फिर्मा, दी फाब्रिक फैक्ट्री, das Unternehmen, das Geschäft, der Laden, दुकान। कॉन्सर्न, कॉन्सर्न एक्चुअली कंपनी नहीं होके इसको बोलेंगे अपन ग्रुप ऑफ कंपनीज। कॉन्सर्न जैसे टाटा, बिरला, अडानी, तो उनकी कंपनियां भी हो सकता है 100 कंपनियां हो, तो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बड़े लेवल पे कुछ हो जिसकी सेंट्रल मतलब मैनेजमेंट, शायद टॉप मैनेजमेंट एक ही होता है जिसके अंडर में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उसको कॉन्सर्न बोलते हैं। Unternehmen एंटरप्राइज, फिर्मा कंपनी, फैब्रिक फैक्ट्री, Geschäft बिजनेस, लाडन शॉप दुकान। ओके, सो das ist ein deutscher Chemiekonzern। तो ये कोई जर्मन बड़ा केमिकल, शेमी का मतलब ही केमिकल है, देखो आगे ना यहाँ पे शेमी कॉन्सर्न का मतलब है केमिकल का बड़ी कंपनी है। हेंकल हार्ट इन प्राग 250 मिटारबाइटर, प्राग में इस कंपनी के 250 वर्कर हैं। दी विस्टिक्स्टन, देखो सुपरलेटिव में हमने सुपरलेटिव सीखा, तो विस्टिक्स्ट है, विस्टिश ये तो ओरिजिनल है, सुपरलेटिव में क्या लगता है, एसटी लगता है, लेकिन दी और प्लूरल के कारण ईएन और लग गया। दी विस्टिक्स्टन कोऑपरेशंसपार्टनर जिंड इन लिंस und इन डुसेल्डॉर्फ, इस कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्टनर हैं, कोऑपरेशन पार्टनर वो लिंस में है मतलब ऑस्ट्रिया में, एंड डुसेल्डॉर्फ जो कि जर्मनी में है, वेस्ट जर्मनी में। एलिस ब्राडोवा राइज ऑफ für ihre Firma nach Österreich und nach Deutschland। nach Österreich, रेशमा बैकग्राउंड में अनुसार है, हाँ। सो नास वो ट्रेवल करती है für ihre Firma अपनी कंपनी के लिए nach Österreich und nach Deutschland। तो nach आता है जब आप दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में कहीं जाते हो, तो ये तो ग्रामर आपको पता है। सो ये जैसे ही खत्म होगा ये वाला टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देखिए आपको दिखा, पता नहीं शेयर नहीं किए होंगे मैंने, क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखना इसको भी। लास्ट टेस्ट है ये, फर्स्ट वाली कैरोलिना कहाँ की है, स्पानियन, जी कौन हाउस या स्पानियन, und Alice Brua Tschechien. ja, sie kommt aus Tschechien, und Gabriela Cagliari 26 und Italienerin, sie ist Italien,
Sie kommt aus Palermo. She comes from Palermo. Heart in Udine Gelegt. Udine कोई इटली में कोई जगह है. She has lived there. Present perfect है तो heart और gelegt. ऐसे आप कोई भी टेंस या कोई भी छोटा मोटा टेक्स्ट भी पढ़ो तो आपको उसका ऑपरेशन करके देखना चाहिए कि ये कौन सा, अरे ये प्रीपोजिशन आ गई, अच्छा ये तो वो रूल है, ये कौन सा क्या आ रहा है उसमें. ऐसे आप लॉजिकली उसको क्रिटिकली देखने लगोगे तो आपको 10 20 30 टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको इजी लगने लग जाएगा बस. और आएगा वही जो आपको मैंने पढ़ाया है, वही आएगा ग्रामर तो एटलीस्ट. कोई नहीं आ गई तो बता दूंगा, कोई मान रह गया हो. जी बार एरास्मस स्टूडेंट इन, सी बार एक्सचेंज स्टूडेंट, जो एक टाइप होते हैं आपस में स्कूल्स के, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उस तरह से वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी. Das heißt, sie ist für ein Auslandssemester nach Spanien gegangen. Sie comes from Italy, but for a exchange program, she went to Spain. Ein Auslandssemester, एक फॉरेन सेमेस्टर के लिए, जो आपस में टाइप होते हैं, वो एक सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए दूसरे स्कूल कॉलेज में भेजते हैं उसको. Dort hat sie ihren deutschen Freund kennengelernt. Hat kennengelernt. Present perfect. Again, she has got to know a German friend. इसका जो बॉयफ्रेंड बना, जर्मन फ्रेंड बना, वो बना स्पेन में. वो भी वहाँ पे पढ़ने आया हुआ था एक्सचेंज प्रोग्राम में, और ये भी गई थी. Nach dem Studium ist sie nach München gezogen. After studies, she went to München. München चली गई वो स्टडीज के बाद में. While ये friend dort studiert hat, because उसका फ्रेंड वहां पढ़ चुका है. हार्ट वाइल कनेक्टर है, वर्ब लास्ट में आ गई. Er macht gerade sein Examen. Gabriela war in Bologna schon in einem Deutschkurs. Gabriela Bologna में एक ऑलरेडी जर्मन कोर्स किया है उसने. Aber in München hat sie noch 2 Intensivkurse besucht. बट म्यूनिख में उसने 2 इंटेंसिव कोर्स और विजिट कर लिए. ये कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है ये? पेशवाई है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हार्ट आ गया और बेजुक्ट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का है. यस. और आबर के कारण देखो वर्ब थर्ड पोजीशन पे चली गई. आबर आबर अडुसो, अडुसो 5 जो वर्ड है उनमें वर्ब थर्ड पोजीशन पे चली जाती है. आ डू सो, आबर, देन, und, sondern, oder. तो आबर के कारण चली गई यहाँ पे. यस. München hat sie 2 intensiv besucht. Jetzt macht sie gerade ein Praktikum bei einem Gericht. Gericht मतलब कोर्ट. What? कोर्ट, कोर्ट जहाँ पे वकील वगैरह काम करते हैं, लॉयर वगैरह, कोर्ट. So sie macht gerade ein Praktikum. Sie ist doing some Praktikum, इंटर्नशिप कर रही है bei einem Gericht, किसी कोर्ट में. Sie findet Deutsch fantasiereicher, फैंटेसी जैसी, und komplexer als Italienisch, अपनी लैंग्वेज से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है इसको. Und sagt Deutsch ist eine Herausforderung. जर्मन सीखना कहती है एक चैलेंज है मेरे लिए तो. Aber man hat auch schneller Erfolg, बट जल्दी आपको सक्सेस मिलती है. Und das ist ein herrliches Gefühl, and then it is really a wonderful feeling कि आपको आ गई लैंग्वेज ये. सो दिस टेक्स्ट. अभी हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस. यस. हार्ट ein Semester in Spanien studiert. किसके लिए आया है? Gabriela. Gabriela, okay. In Spanien, yes, correct. Gabriela, the last one, na? Basically, she comes from Italy. Italian. Yeah. Italy. Richtig. Aber ein Semester hat sie in Spanien studiert und da hat sie auch einen Deutschfreund kennengelernt. Okay. Hat in der Schule Deutsch gelernt. इन तीनों में से who has learned German in school? Alice Brado. Alice ने किया है. Als Kind einem Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule. Sehr gut. Ja.
Fährt oft nach Deutschland und Österreich, travels often to Germany and Austria. Alice Braddock. Alice. And Spanien studiert, das ist Gabriela. Gabriel. And hat in der Schule Deutsch gelernt. Alice. Alice. Okay. Hat in Spanien und Deutschland studiert. Carolina Lopez. Carolina. Okay. Carolina. Hat Deutsch immer Spaß gemacht. It was a fun. Gabriela. Gabriel. Nur Spaß und komplex. Ich denke, Alice. For Gabriela, it is a challenge. Interesting and challenging. Yeah. But I think it's Alice. Check once. Because Alice says she learned German because it was a fun for her. Deutsch immer Spaß gemacht. Ja, das ist Alice. Macht gerade ein Praktikum. Some internship is going on. Das Gabriela. ist Gabriela. Hat viel auf Deutsch gelesen. German में Alice. खूब पढ़ा है. Alice. Alice. So Alice ही जीत गई. 4 आगे इसके. यहाँ richtig. Klar. जो ist es? Okay. So ist es. Moment. सर आप एंस की मीनिंग बता देंगे एंस उसमें मैरीटाइम का आया था Als का मतलब है edge. Edge. सर वो करेक्ट है, एक बार आप ले सकते हो क्या? और इट नॉट टू देयर. कौन सा कनेक्टर? वही आल्स वेल हार्बर. एक बार आप उसमें देखना, जो भी दिक्कत आएगी ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. एक बार ना, एक बार ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्डेड है उसमें ऐप में, सो मे बी पंकज यू कैन गो थ्रू. हाँ, और फिर अपन उसको ले लेंगे जहाँ भी कोई चीज ऐसे आएगी ना कि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो वापस ले लेंगे, पर एक बार उसमें देखिएगा प्लीज. सो आल्स के वैसे 3 मीनिंग है. एक तो कनेक्टर के तौर पे आल्स आता है, तब तो इसका मतलब निकलता है व्हेन इन द पास्ट. व्हेन इन द पास्ट. एंड एक आल्स का मतलब होता है एज ए. आई एम वर्किंग एज ए टीचर. सो इस arbeite als मतलब एज ए टीचर. इस arbeite als Lehrer. Als Lehrer. I am working as a teacher. Als. और एक als हम लोग कंपैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. जैसे he is better than me, तो यहाँ पे als का मतलब निकल जाता है than. besser als. besser als. ऐसे 3 मीनिंग होते हैं als के. एक when, बट ये पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में. then and